اللہ کی لاٹھی بے آواز جو جھوٹے الزام لگانے والے قذافوں کے سر پر پڑی ہے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا موصوبی نے تسلیم کیا ناجائز دولت کا ذرا سا بھی ثبوت نہیں ملا۔ تحقیق کرنے والے بھی مان گئے کہ یہ سب سیاسی انتقام تھا۔ پرویز مشرف، عمران خان اور نیب نے قوم کے کروڑوں روپے نفرت کی آگ میں جھونک دیے۔ سربراہ براڈ شیٹ کی معافی نے آج ان کے ڈرامے کا ڈراپ سین کر دیا۔ گوادر، سی پیک ہو یا دیگر سڑکوں کے منصوبے، کسی میں بھی ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ہوئی۔ میڈیا سے گفتگو میں قائد حزب اختلاف نے کہا کہ عدالتیں اس معاملے کو کس حد تک لیتی ہیں یہ ان کا کام ہے۔ 14 دن میں اجلاس بلا کر وہ ثابت کر دیتے اپنی عدلی قوت، تو معاملہ ختم تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ممبرز ہیں پی ٹی آئی کے، وہ اپنی ضمیر کی آواز پر آج کھڑے ہو گئے ہیں۔ اتحادی جماعتیں بھی میں سمجھتا ہوں بڑی حد تک یکسو ہیں۔ برطانیہ کی ایسٹ ریکوری براڈ شیٹ کمپنی کے جو سی او ہیں کاوے مساوی، انہوں نے غیر مشروط طور پر میاں محمد نواز شریف سے معافی مانگ لی ہے۔ ان کو غلط اطلاعات دی، یہ بالکل ہوا میں باتیں تھی۔ نیازی نیب گٹھ جوڑ کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ ہے۔ کیا ملا؟ یہ قوم کا پیسہ سب برباد ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ برطانیہ میں خفیہ اثاثوں کا پتہ لگانے والے ادارے براڈ شیٹ کے سربراہ کاوے موسوی کا کہنا ہے نواز شریف کرپٹ نہیں، ان پر لگائے گئے الزامات پر معافی مانگتا ہوں۔ ان کا کہنا ہے 2 دہائیوں سے نواز شریف کے خلاف احتساب کے نام پر نشانہ بنانے کی کارروائیوں کا حصہ بننے پر شرمسار ہیں۔ لوٹی کی دولت کے حوالے سے تحقیقات میں نواز شریف یا ان کی فیملی کا 1 روپیہ بھی نہیں ملا۔ کوئی شک نہیں کہ نیب نے سیاسی بنیادوں پر نواز شریف کے خلاف مقدمات بنائے۔ We found no assets, no cash relating to the Nawaz Sharif family. We found a lot of plundered assets, but not 1 rupee of that could be connected to the Nawaz Sharif family. NAB was set up as a witch hunt against the political opponents of Mr. Musharraf at the time. And of course the biggest target was Mr. Nawaz Sharif. If after 22 years I can tell you this, you can be pretty sure there's nothing else to be found. The reason why the government has done nothing is because it's a fraud. It's a complete pack of lies. I've had discussions with the ministers in the Imran Khan cabinet. I've given them masses of information. They have done nothing. Absolutely nothing. کاوے مساوی کی معافی پر مریم نواز نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان 65 ملین پاؤنڈز خرچ کر کے نواز شریف کے خلاف 65 روپے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکا۔ نواز شریف کو تو اللہ نے سرخرو کر دیا، مگر مساوی کا معافی نامہ عمران خان کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ اس کو بتانا ہوگا کہ قوم کا پیسہ اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے پر بہانے کا اختیار کس نے دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ براڈ شیٹ کا مالک خود نیب کا مجرم ہے۔ اس کی گواہی پر شہباز شریف کی پریس کانفرنس ان کی بوکھلاہٹ کا اظہار ہے۔ شریف خاندان کی کرپشن کا ثبوت ان کے بینک اکاؤنٹ سے لے کر لندن کے مہنگے ترین اپارٹمنٹس ہیں۔ کیلیبری فونٹ کا جعلی حلف نامہ ہو یا مریم کے بیانات، ہر لفظ کرپشن چھپانے کا بیانیہ ہے۔ شہباز گل نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا شہباز شریف ساری دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، اتنا نہیں بتا رہے کہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 4 ارب کہاں سے آئے۔ کاوے کا بیان جج شمیم والے ڈرامے کی دوسری قسط ہے۔ ابھی اور کرائے کے گواہ پیدا کیے جائیں گے، لیکن نہیں ملیں گی تو رسیدیں نہیں ملیں گی، اور یہ کہ مقصود چپڑاسی کا جواب نہیں آئے گا۔ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلاموفوبیا کے نام پر ہونے والے واقعات پر دنیا خاموش رہی۔ 1.5 ارب مسلمانوں کو دہشت گردی سے کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان کا OIC وزراء خارجہ اجلاس کے افتتاحی سیشن سے خطاب۔ کہا مسلم دنیا کی جانب سے اسلاموفوبیا کے واقعات پر خاموشی افسوسناک ہے۔ اسلام اور مسلمان مخالف بیانیے کو چیلنج نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے مزید کہا کہ مسلم امہ فلسطین اور کشمیر کے معاملے پر ناکام ہوئی۔ عالمی برادری نے مقبوضہ کشمیر کے حل کے لیے کبھی دباؤ محسوس نہیں کیا۔ دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہونے کے باوجود اس قابل نہیں کہ مظالم روک سکیں۔ We have failed both the Palestinians and the people of Kashmir. I'm sad to say that we have been able to make no impact at all. They don't take us seriously. We are a divided house, and those powers know it. We are 1.5 billion people, and yet our voice to stop this blatant injustice is insignificant.
Now I saw this growing after 9/11. This Islamophobia kept growing. And the reason was, I'm sorry to say, that we, the Muslim countries, did not do anything to check this wrong narrative. How can any religion have anything to do with terrorism? How was Islam equated with terrorism? How is the man in the street in Western countries, how is he supposed to differentiate between a moderate Muslim and a radical Muslim? How can he differentiate? Unfortunately, what should have been done and wasn't, the heads of Muslim countries should have taken a stand on this. But instead, a lot of heads of state kept saying things like, well, we are moderate. The moment you say you're a moderate Muslim, you automatically say that there is some extreme form of Islam. OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल का इजलास पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में जारी है। 57 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा, मंदूबीन और मुबस्सिरीन शरीक हैं। इजलास से खिताब करते हुए OIC सेक्रेटरी जनरल ने यमन, फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने अपने खिताब में कहा, सऊदी अरब अफ़गानिस्तान, फ़लस्तीन और मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों की हिमायत करता है। मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए आलमी बरादरी को किरदार अदा करना चाहिए। मेहमान खुसूसी की हैसियत से कॉन्फ्रेंस में शरीक चीन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, चीन आलमी सलामती के लिए पुरज़्म है और आलमी सतह पर अमन का ख्वाहां है। इजलास से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, तरक्की पजीर ममालिक को अदम मसावात समेत कई चैलेंजेस का सामना है। OIC अमन के फ़रोग़ के लिए मौसर किरदार अदा कर रही है। मशरिक और मगरिब की कशीदगी आलमी अमन के लिए खतरा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाई। दुनिया के 2/3 महाजरीन का ताल्लुक 5 मुस्लिम ममालिक से है। मकबूजा कश्मीर में 9 लाख भारतीय फ़ौज कई दहाइयों से मज़ालिम ढा रही है। कश्मीर में मुसलमानों की नस्ल कशी जारी है। हिंदुत्व कंट्रोल के तहत भारतीय मुसलमानों को ख़तरा है। फ़लस्तीन के अवाम को उनका हक नहीं दिया जा रहा। कश्मीर और फ़लस्तीन 7 दहाइयों से कब्जे का शिकार हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत और दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा दिफ़ाई ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात हुई, जिसमें दोनों ममालिक के माबैन फ़ौजी ताउन और दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत की गई। खित्ते में देर पामन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। रोजनामा, नई बात, न्यू न्यूज़ समेत मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस के सरकारी इश्तिहारात की बंदिश के खिलाफ सहाफ़ती बरादरी का एहतजाज। तमाम सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मज़ीद जानेंगे न्यू न्यूज़ की नुमाइंदा माहिरा हाशमी से। आज बिल्कुल न्यू न्यूज़ पर प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ नशर करना जो है वो जुर्म बन चुका है। सरकार जिससे नाराज भी हो चुकी है और इसके साथ ये भी बताती चलूँ कि सिर्फ चैनल बंद करने की धमकियां नहीं, मुसलसल दबाव डाला जा रहा है। सरकारी इश्तिहार जो है वो बंद कर दिए गए हैं, जिसके खिलाफ इस वक्त प्रेस क्लब के बाहर जो है भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है पुरअमन तरीके से। इस वक्त मेरे साथ कुछ सहाफ़ी बरादरी भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये आमिराना रविश है या फिर हुकूमत के ये हथकंडे कब तक आज़ादी सहाफ़त की ज़ुबान जो है वो बंद करते रहेंगे। इस वक्त मेरे साथ सीनियर चीफ कैमरामैन जो है वो मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, हमेशा आज़ादी सहाफ़त पर खासकर अभी न्यू न्यूज़ पर तकरीबन 6ठी मरतबा इश्तिहार बंद कर दिए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये न्यू न्यूज़ के साथ इन्होंने कोई पहली दफ़ा नहीं किया। इनसे पहले भी जो इनकी शक्लों में डिक्टेटर्स इस मुल्क में मुसल्लत होते रहे हैं, वो बारहा इस तरह की कोशिशें करते रहे हैं और वो आज़ादी सहाफ़त को दबाने की कोशिश करते रहे हैं। न्यू न्यूज़ ने पहले भी बड़ी जवाबमर्दी के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ ये जंग जीती थी। इस वक्त ब्यूरो चीफ न्यू न्यूज़ अयाज शुजा साहब भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। सर, बताइएगा, हमेशा तकरीबन ये पहली मरतबा नहीं 6ठी मरतबा इश्तिहारात बंद कर दिए गए हैं। हुकूमत जो दावे करती थी कि आज़ादी सहाफ़त की हम आवाज़ बुलंद करेंगे, आज वही मुआशी कत्ल कर रही है, क्या कहेंगे? ये अपना
जिस वक्त पीटीआई अपोजिशन में थी उस वक्त ये मीडिया की आज़ादी इज़हार राय के सबसे बड़े चैंपियन थे, लेकिन हुकूमत में आने के बाद अब उनका एक ही एजेंडा है, फला एंकर को ऑफ एयर कर दें, फला एंकर की आवाज़ बंद कर दें, फला खबर जो हुकूमत के खिलाफ नहीं चलनी चाहिए, फला हेडलाइन 9 बजे के खबरनामे में क्यों हमारे खिलाफ चली। वो चाहते हैं कि हम सब अच्छा दिखाएं, ये जो महंगाई आसमान को छू रही है वो ना बताएं, लोग अपने बच्चे फरोख्त कर रहे हैं वो ना बताएं, पेट्रोल की कीमतें रोज बढ़ रही हैं वो ना बताएं, दुनिया में पेट्रोल की कीमतें नीचे जाती हैं, हमारे मुल्क में ऊपर जाती हैं वो ना बताएं। वो चाहते हैं कि हम सबको ये बताएं कि यहाँ पे मदीना की रियासत कायम हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकेगा। हम लोगों को झूठ नहीं बोल सकते, हम लोग जहाँ पर बाहर लोग बेचैन हैं हम ये नहीं कर सकते कि हम ना बताएं कि लोग कितने महंगाई की वजह से तंग है, कितने बेचैन हैं, और ये हम करते रहेंगे। सिर्फ जुर्म ये था कि आखिर क्यों तलत हुसैन की आवाज़ को जो है दोबारा से बहाल किया गया, उस आवाज़ को बहाल किया जो कि बहुत साल पहले जो है वो बंद कर दी गई। तो इस वक्त पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर जो है इब्राहिम लक्की साहब, उनसे भी बात करेंगे। सर बताइएगा, हमेशा की तरह मीडिया को जो है वो एक फिर निशाना बनाया गया है, मुआशी कत्ल किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए बुनियादी तौर पर जो है जो हम ये समझते हैं कि हुकूमत जो है इस वक्त बिल्कुल सथिया गई हुई है, क्योंकि इस वक्त हुकूमत कंफ्यूज है, डबल माइंडेड है, क्योंकि अपोजिशन का जो उनके साथ इस वक्त जो सियासी सूरत पे नंबर गेम पर जो इश्यूज हैं उस पर जो है ना हुकूमत जो है ना बुखराहट में आकर मीडिया हाउसेस पर हमला कर रही है, जो हक सच की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं मीडिया ग्रुप, उनके इश्तारात बंद किए जा रहे हैं। इन हथकंडों से जो है तमाम आज़ाद आवाज़ों को बिल्कुल भी दबाया नहीं जा सकता। आज़ादी सहाफ़त तक ये जंग इसी तरह जारी रहेगी और जितने भी सहाफ़ी हैं तब तक यहाँ से अपना एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे और हमारे इश्तिहारात जो है वो बहाल नहीं किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया, मायरा हाशमी अपडेट कर रही थी। नई बात मीडिया ग्रुप के सरकारी इश्तिहारात की बंदिश के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ती तंजीमें सरापा एहतजाज। खानेवाल, चनियोट, हाफजाबाद और ठट्ठा में सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी ने मुजाहरे किए। मुजाहिरीन ने कहा, नई बात मीडिया ग्रुप के सरकारी इश्तिहारात की बंदिश नाकाबिले कबूल। हुकूमत आज़ाद मीडिया की आवाज़ को दबाने की नाकाम कोशिश कर रही है। सरकारी इश्तिहार बंद करना सहाफ़ियों का मुआशी कत्ल है। बहावलपुर में भी सहाफ़ती तंजीमों की नई बात मीडिया ग्रुप के सरकारी इश्तिहारात बंद करने की मसम्मत। सहाफ़ियों ने कहा, अगर इश्तिहारात बहाल न किए गए तो एहतजाज का दायरा वसी करने पर मजबूर हो जाएंगे। हुकूमत पंजाब ने पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन एक्रीडेशन कमेटी के नामों का ऐलान कर दिया। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान को मेंबर एक्रीडेशन कमेटी तैनात कर दिया। प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान को तालीमी मैदान में आला तालीम के फ़रोग़ और सुपीरियर 3U1M प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरल टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम की वजह से अवामी और तालीमी हलकों में बहुत पजीराई हासिल है। नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद बिलाल हमें मज़ीद अपडेट करेंगे। जी बिलाल। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन एक्रीडेशन कमेटी के नामों का ऐलान कर दिया है। वाइस चांसलर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली को चेयरपर्सन एक्रीडेशन कमेटी तैनात कर दिया गया है, जबकि रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान को मेंबर एक्रीडेशन कमेटी पंजाब तैनात कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान को तालीमी मैदान में आला तालीम के फ़रोग़ और सुपीरियर 3U1M प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरियल टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम की वजह से अवामी और तालीमी हलकों में बहुत पजीराई हासिल है। प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की भी मेंबर है। इसके साथ ही एक्रीडेशन कमेटी के बहुत शुक्रिया, मोहम्मद बिलाल अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने स्पीकर चैम्बर में पंजाब असेंबली के तरक्की पाने वाले अफसरान में प्रमोशन लेटर तकसीम कर दिए। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी को ग्रेड 22 में मुस्तकिल करने के ऑर्डर्स दिए, जबकि डायरेक्टर जनरल पंजाब असेंबली इनायतुल्लाह को बतौर सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन ग्रेड 21 में तरक्की दे दी गई। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को तहरीक-ए-अदम एतमाद की कामयाबी का यकीन। कहते हैं इमरान खान के हलीफ उनके साथ नहीं रहे, एमक्यूएम को ऐलान करने में शायद 1-2 दिन लग जाएं। कराची में मुत्तहिदा रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, मौलाना फजलुर रहमान की सूरत उन्हें एक और मौका मिला है, हुकूमत हमें कम अज़ कम हुकूमत में रहने का जवाब तो रहने देती।